Meena Bazaar in Bar Dubai feels like a slice of India. 5 dirham haircuts, 200 dirhams monthly tiffin. Desi life everywhere. Which makes Dubai feel affordable, familiar, and almost easy. But does it actually work out for the students? The ones especially looking for a job? Or is it really very different? So let's hear it from one of the students who experienced this firsthand and has a crazy story to share with all of you. Hello guys, we are here right now in very close to Burjaman, and we are in this neighborhood where a lot of Indians are staying and a lot of students stay. Yeah. And we have our good friend Heel with us. He was there with us at De Montfort University, and now today he's going to show us around how is he living in Dubai. Yeah. And we just came from Sharaf DG metro station. We took it from Burjaman, and we are now right in the middle of it. Looks very much like India. Yes. And everything is here. There is supermarket. There are multiple Indian restaurants like Roti. There's Al Prasad in the back, which is a vegetarian restaurant. It looks like, right? Yeah, Swaminarayan restaurant. Swaminarayan restaurant. So it's a Like definitely Gujarati taste. right. So Gujarati taste, good restaurant available with clothes, mobile, travel, Yeah. barber, Haircut, everybody, saloons. everything. यहाँ पे आपको दुबई का सबसे सस्ता सैलून मिलेगा 5 dirham. 5 dirham में भाई Haircut. haircut. इतना इंडिया में नहीं मिलता है. Yeah. Dirham haircut, 5 dirham saving, सब कुछ. So today we are going to experience the life of Dubai from the eyes of Heel. भाई इंडियन स्टूडेंट दुबई में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं. We are going to visit one of his friends apartments also कि किस तरीके से apartments हैं, लोग किस तरीके and यहाँ पर अपन लोग देखें लोग अपना खाना का कर रहे हैं. And he was sharing, यार he was sharing something very interesting. One very cheap टिफिन सर्विस. Of course. सो एक बार थोड़ा व्हाट आर टिफिन सर्विस. यहाँ पे अलग अलग स्टेट के वाइज यहाँ पे सारी रेस्टोरेंट्स है. लाइक राजस्थानी फूड मिल जाता है, उसकी रेस्टोरेंट रहती है. गुजराती फूड मिल जाता है, फिर महाराष्ट्रन फूड. साउथ इंडिया की ज़्यादा यहाँ पे शॉप और वेराइटीज़ रहती है. राइट. सो यहाँ टाइप के रेस्टोरेंट्स है और आप वहाँ से मील भी मंथली बेसिस पे अराउंड 200 दिरहम से लेके 300 दिरहम्स पर मंथ का आपका एक्सपेंस होता है वन टाइम मील का. वन टाइम मील का. सो वन टाइम मील में 200 दिरहम में आप पूरे महीने की वन टाइम मील का टिफिन आप करवा सकते हो. दैट मीन्स इन 200 दिरहम they will deliver. Yeah, let's say we're talking about lunch. Yeah. So they will pack the lunch and deliver it to your home. Yes. 30 days 30 days in a month Yeah. for only 200 dirham. Yes. And of course, depending on quality and taste, you can experiment. No, they have good quality. Yeah. Right. They have Instagram account. Yeah. आप देख सकते हो कि कैसे वो लोग खाना बना रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं. ऑलरेडी उनके 12,000 प्लस उनके कस्टमर से डेली 12,000 प्लस उनके टिफिन्स जाते हैं डेली. Right. राइट. So they are not like ऐसा नहीं है कि तो छोटे मोटे बिजनेस हैं. They are serving a large amount of meals. Yeah. Every day. And different type of meals. And different types of meals. And if you do this 600 dirhams में, you can have all your entire food. 500 dirhams. 500 dirham में भी option है. Yeah. And अभी एक 400 dirham वाला भी option दिखा. Yeah. So we'll just show you guys also. But you can get all the meals done very cheaply, where you don't have to cook, and the food will get delivered like clockwork to your home every day. और इवन प्लस यहाँ पे सारी ग्रोसरी स्टोर्स 24/7 चलती है. Right. सो आप कभी भी जाके कुछ भी ले सकते हो. Even summers में भी 24/7 Yes, चलता है. yes, summers में भी. Okay. Yes. Yeah, because it is hot during the day. सब लोग बाहर रात को निकलना ज़्यादा I think ज़्यादा पसंद करते हैं. तो नाइट लाइफ यहाँ की बहुत अमेजिंग है. एंड अमेजिंग बाजार है बिल्कुल. दिस कॉल मीना बाजार. मीना बाजार भी हम लोग मीना बाजार आ गए हैं. वेरी एकदम ऐसा लग रहा है दिल्ली के सरोजनी मार्केट आ गए हैं. ऑफ कोर्स बहुत सस्ता, बहुत चीप आपको मिल जाएगा यहाँ पे. आपको यहाँ पे लाइक कट करना है तो कट भी कर सकते हो. फर्स्ट कॉपी सब कुछ मिल जाता है. फर्स्ट कॉपी सब कुछ. ओनली 1000 रुपीज में आपको रोलेक्स की फर्स्ट कॉपी मिल जाती है. 1000 रुपीज नॉट इवन दिरहम है. या मतलब 40 दिरहम्स में आपको फर्स्ट कॉपी सब कुछ मिल जाता है. वॉचेस, बैग, किसी को क्योंकि बॉक्स भी उस तरीके प्रॉपर बॉक्स, प्रॉपर बिल, प्रॉपर उसके एनवलप सब कुछ आपको 46 to 70 दिरहम्स में महंगी से महंगी वॉच आपको मिल जाएगी. ये पूरा मीना बाजार है. अभी बंद होने का टाइम है 11 बजे तक सब बंद हो जाएगा, इसलिए अभी कम रश है. वरना आप शाम को आओ फुल रश. या एंड ऑफ कोर्स आई थिंक इट फील्स वेरी मच लाइक इंडिया की मार्केट है. यस. एंड सारे अपने इंडियन इंडियन पाकिस्तानी यहाँ पे शॉप्स रहती है. सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है. ग्रोसरी स्टोर सब कुछ रहता है यहाँ पे. And as part of this, we wanted to also show कि यार कैसे रह रहे हैं स्टूडेंट्स, बच्चे के रहते कैसे हैं, खाते क्या हैं. तो
he was showing us all the tiffin services and restaurants available, क्या system होता है, just so that you know बहुत students हैं वो थोड़ी unprepared आते हैं. So what can they do? How can they prepare? पढ़ाई तो ऑब्वियसली आई हैव डन टू बिलो बस तो पर मेरे मानना ये दो चीज़ें तीन में से सबसे पहली चीज़ किस्मत तो बहुत ज़रूरी. अगर आपको कुछ भी ज़िंदगी में गिरना तो किस्मत ज़रूरी है. सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो यू शुड हैव गुड रिलेशन विद पीपल. ठीक है, जितने भी लोग आसपास है अगर तुम उन्हें जानते हो तो चीज़ें ईजी हो जाती है. एंड लास्ट में यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. Absolutely. अगर आपके पास वो है तो आप कुछ भी नहीं मिल सकते. अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है. आता है मगर बता ही नहीं सकते कि यार आता क्या है. तो हाँ. if you- फिर मैं अपनी अभी एक जॉब वाली स्टोरी बताऊँ तो मैं तो थोड़ा सा दोबारा से बताओ कि how did you land here? तो अगर मैं जर्नी की बात करूँ तो स्टार्ट ऐसे हुआ कि मी एंड माई पेरेंट्स वे प्लानिंग कि चलो 12th था वो 13th को प्लान हुआ एंड मैं पापा मम्मा हम तीनों आ गए. सो वी वर स्टेइंग 13th of November. 13th ऑफ नवंबर. 14th को डैड का बर्थडे था तो वी केम हियर एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथ. हम 16th को आई थिंक 16th या 17th द फ्राइडे तो 16th ही था तो डे टू डे विजिट का यही सिटी सेंटर डेरा वाला. एंड वहाँ पर मुझे एक रैंडम बंदे के हाथ में एक फाइल थी एंड आई आस्क्ड हिम कि लाइक वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. तो उसने बताया कि आई वेंट फॉर इंटरव्यू. मैंने पूछा कैसा गया. कह रहा यार हो गया, अच्छी कंपनी है, ये है वो है. मैंने कहा ओके वो बढ़िया यार, ये तो बहुत ईजीली हो गया. तो मैंने पूछा कहाँ से हो. कहता मुंबई से हो. मैंने बोला मैं दिल्ली से हूँ. दिल्ली वालों की बनती नहीं है. ऐसे हमारी ऐसी मजाक हो रही थी, बढ़िया बात हुई. तो उसने पूछा कि आपका कहते घूमने आया हूँ बट अगर जॉब अच्छी मिले तो कर लूँगा यार. उसने वो मेरी कंपनी में दे लो इंटरव्यू शेयर करा. मंडे को इंटरव्यू देने गया और वहाँ पे 11 रखे थे. उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट करा, एक मुझे और एक और को. फिर मैंने पूरा लाइन दिया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. तो इस थर्सडे मतलब परसों जाके मैंने फाइनलाइज करा कि हाँ ठीक I will join. आई विल जॉइन, बढ़िया सीन है. तो उसके बीच में एचआर कॉल करती कि एक आंसर दे दो, ये है वो है. मैं पूरे वो 4-5 दिन ले रहा हूँ, पेरेंट्स से डिस्कशन कर रहा हूँ. ये भाई घूमने आए थे कि यार ये तो जॉब आ लिया. मम्मी कहती यार ऐसा लग रहा है मैं तो तेरे को छोड़ने आई थी. वो ही मूव हुई, उनसे बात हुई बड़ी मुश्किल से. फिर उन लोगों ने भी माना मैंने कहा डेट हो जाएगा. उन्होंने कहा हाँ यही टाइम फीस है सही है. तब फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा. So, दोस्तों, he's Mayank. I'm just introducing him. He's from Delhi. He's done his bachelor's already and a couple of diplomas that you mentioned, and was already working in India. Was on here just as a tourist and ended up getting a job. But ये video देख करके ये मत समझ लेना यार कि that getting a job in Dubai is that easy. So what he's also saying is that it's out of 11 people, 2 people only got selected. I think that's also a fantastic ratio, by the way. But it requires luck. It requires very good communication skills, and you have to have overall skills for the job as well. और एक और चीज़ अगर मैं इस पूरे वीक में अपने ऑनलाइन इंटरव्यूज़ जो मैं शेड्यूल कर रहा था तो मैंने 113 इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करा था, जिसमें से मेरी सिर्फ 2 जगह इंटरव्यूज़ हो पाए. और उनमें से मतलब वो 2 जगह फाइनल हो गया बट दे वर नॉट गोइंग लाइक गिविंग मी गुड सैलरीज. तो फिर मैंने कहा कि नहीं यार ये बैंक वाले फिर 113 में से 2 जगह इंटरव्यू कॉल्स आए, जॉब भी मिल गई, बट ऑफ कोर्स द टर्म्स वर नॉट गुड. But I think overall, I would say that shows that you can actually, if you are applying for 100 jobs, you can get 2 interviews. But don't think this is the norm. This is something that it all will depend on your own background, what kind of a job and you are looking for, what domain you are looking for. And but yes, it's an encouraging story, man. Thank you for sharing. So if you like this content, please subscribe to our channel and I will see you all in the next video.